Hello students, today we are going to start method of tunneling. Students, in a method of tunneling, we already see face method in lecture number 13. In lecture number 14, we see method of tunneling, different type of methods using in rock and soft ground. So first we start with the heading and benching method that is used in tunneling in rock ground. So start with the heading and benching method. Heading and benching method, students. In this method, we are the tunneling in two construction part. First is heading and second is benching. So students, in a heading is the top part and the benching is the bottom part. Heading heading is the one step advance to the benching part. First we constructed the heading and then we will the benching expression. Right. So you can see here that is the heading and this is the benching part. Heading going to the one step advance to the bench. We in a heading we drive the holes, drill the holes, and these holes are filled with the explosive. And after the excavation of this part, we put the benching explosion to the drill hole, and after remove this part. So that is the step of construction of tunneling. Students, this method is using the less explosive. Therefore, it is better to the full face method. And due to this development of the drill carriage or jumbo, use of this method is decreasing. So that is the drill method. And here that is the heading part of size is 3.7 to 9.6 meter heading size. You can see here also the heading and benching part in sections in rocky soil. Now see the next method, drift method. ड्रिफ्ट मेथड स्टूडेंट्स क्या है आपका एक ड्रिफ्ट आप कर लेते हैं टनल्स में, एक स्मॉल ड्रिफ्ट करते हैं टनल्स में, जितनी भी लेंथ ऑफ टनल है उसमें आप एक ड्रिफ्टिंग कर लोगे। ड्रिफ्ट करने पे आप यदि ज़्यादा लंबी है तो हाफ में भी कर सकते हो, हाफ हाफ लेंथ पे भी कर सकते हो कि हाफ लेंथ हमने पहले ड्रिफ्ट किया फिर उसके बाद में ड्रिफ्ट किया। ठीक है, आफ्टर द ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्ट करने के बाद हमको क्या करेंगे, उसको फुल फेज एक्सप्रेशन करेंगे, जितना भी हमें नोट के साइज के अकॉर्डिंग जितना भी बोर करना है दैट विल बी एक्सपेक्टेड। राइट। तो पहले हमने क्या किया, इसमें ड्रिफ्ट किया, साइज ऑफ ड्रिफ्ट है दैट इज 3 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको ड्रिफ्ट होल करने प्रोवाइड करने के बाद फुल फेस एक्सप्रेशन किया। राइट, मतलब फुल फेस मतलब फुल बोर एक्सप्रेशन किया। राइट। तो हमने ऐसे ड्रिफ्ट मेथड से टनलिंग की। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ड्रिफ्ट है आपका, ये आपका टनलिंग है, इस पार्ट में हमने ड्रिफ्ट की लोकेशन तैयार की है, ये सेंटर में है, ये हमारा बॉटम पे ड्रिफ्ट किया हुआ है, ये टनल के टॉप पे है, ये टनल्स के टू ड्रिफ्ट यूज किए, दैट इज द वन साइड एंड दैट इज द अनदर साइड। राइट। In case of large pilot tunnels में drift mode and then expanded, and these can be more than one drift। क्या आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ड्रिफ्ट यूज किए हैं डिफरेंट लोकेशंस में। राइट। राइट, तो डिफरेंट मेथड्स में जो आपके ड्रिफ्ट मेथड्स हैं उस पे आपकी लोकेशन डिपेंड करेगी ड्रिफ्ट की, और ये आपका जो भी है जिस टाइप में हमें यूज करना है ड्रिफ्ट को यूज कर सकते हैं। So that is the drift method. Now we see the driving tunnels in soft ground. While tunneling in soft grounds, explosive are not used and tunneling is done. आपका जो सॉफ्ट ग्राउंड है हम उसमें कोई एक्सप्लोजन मटेरियल यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हम उसमें टनलिंग में अब हार्ड रॉक को रिमूव करने के लिए हम एक्सप्लोजन का यूज कर देते हैं, बट इन दिस सॉफ्ट ग्राउंड टनलिंग वी आर नॉट यूज एनी एक्सप्लोजन। Here we tunneling by the hand tools and such as a pickaxe and shovel.
Also we use the masonry tools, right? So during the excavation, operation support of soil are required immediately, right? Whenever we tunneling in a soft ground, we provide the support to the ground uh, simultaneously, right? When we excavate some soil and will be supported that part. So क्योंकि हमारी सोइल आपको पता है कि वीक होती है तो वो कभी भी गिर सकती है, तो आपको कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, तो दैट्स व्हाई वी यूजिंग द सपोर्टिंग पार्ट इमीडिएटली। स्टूडेंट्स सॉफ्ट ग्राउंड्स में आपका क्या है, जो भी पहले यूज करते थे हम सपोर्टिंग पार्ट के लिए टिम्बर्स यूज करते थे, टिम्बर प्लैंक्स हुए जो भी है, बट नाउ डेज वी यूजिंग द RS joist, right? और यू कैन से स्टील प्लेट सपोर्टिंग पार्ट ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिपेंड करता है कि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कितना है आ रहा है, उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं कि हमें स्टील प्लेट्स यूज करनी है या वुडन प्लेट्स को यूज करनी है। Here we see the two method of tunneling, needle beam method, second is compressed air tunneling method. Needle beam method, students, this method is useful for tunneling in a soft ground which rough soil can stand without support for a few minutes, right? And that's in this method, the 5 to 6 meter long RS joist or timber beams are required in additional to other timber board and studs. You can see here in this diagram, right? Here we using the stud and jacks, and this is a stud, and this is the center beam, needle beam. The jacks will be connect to the beam, and that is a lagging, right? Lagging the material which used to support the ground. Okay, so this method require large number of jacks. आपने जैसे अभी डायग्राम में देखा कि large number of jacks provide करे हैं हमने सपोर्ट करने के लिए लैगिंग को, which cause obstruction in efficient working of labor. और अभी ज्यादा नंबर ऑफ आप जैक्स या कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, जो हमारे लेबर्स है जो यूज कर रहे हैं फॉर रिमूव द मोकिंग, ठीक है, जो आप मलबा उसको रिमूव करने के लिए जो यूज कर रहे हैं लेबर, तो उनको काफी परेशानी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो राइट, इसके कारण फॉर टनलिंग आर सॉफ्ट ग्राउंड इज मोर इकोनॉमिकल देन द अदर मेथड। ये वैसे इकोनॉमिकल होता है अदर मेथड की अपेक्षा, ये आपका इकोनॉमिकल होता है निडल बीम मेथड। Here we see the sequence of construction operation. First of all, a small drift of size about 1 into 1 meter is prepared on the working face of tunnel. पहले हमने एक ड्रिफ्ट साइज का होल आपने क्रिएट कर लिया फेस ऑफ टनलिंग के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे आपका हमने लेगिंग प्रोवाइड किया और बीम बीम जो आपकी निडल बीम है दैट विल बी प्रोवाइडेड, that is the rest on the front face है, that will be rest on the drift part, ये आपका ड्रिफ्ट है उस पे रेस्ट करेगी, और जो रियर फेस है ये आपका स्टड पोस्ट पे रेस्ट करेगा, that is the lining of concrete, right? और ये आपका जैकिंग है, जैकिंग इज सपोर्ट ऑन ए निडल्स, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, तो ये फुल फेस कंस्ट्रक्शन किया हमने, राइट? तो ऐसे आपका यहाँ पे टनलिंग होती है। As shown in figure, the needle beam is placed horizontally, जैसे हमने देखा हॉरिजॉन्टल प्लेस होती है और उसका फ्रंट फेस से रेस्ट करता है आपका ड्रिफ्ट पे, और रियर फेस से रेस्ट करता है स्टड पोस्ट पे, दैट इज जो स्टड पोस्ट है रेस्टिंग ऑन द लाइनिंग ऑफ टनल। So the jacks will be placed on the top of the beam, needle beam, to support the roof with legging, and the drift is widened sideways. The whole section is excavated. After the whole section, yeah, you can say whole bore are excavated. After the excavating, lining may be provided. उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइनिंग या कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड करें या रेनफोर्समेंट लाइनिंग प्रोवाइड करें, तो आप उसके बाद लाइनिंग प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है।
So that is a sequence of the construction operation in a soft ground. So you can say needle method. Now we see the second method is compressed air tunneling method. compressed air tunneling method स्टूडेंट्स आपका soft ground में modern method है tunneling करने के लिए. So that method is now used with the compressed air is a force in a enclosed space to prevent the collapse of the roof and sides of tunnels. Usually, air is used in conjunction with the shield and airtight lock. However, numerous small tunnels have been driven using only linear plates or wood cant only. Right, you can see here. Here we using this assembly air compression. This is the cutters. This is chamber air compression. This is the chamber cutting chamber. And this is the shield. Right. ये था थ्रस्ट रैम. दिस इज द थ्रस्ट रैम जो आपको आगे दिखाता रहेगा इसको. राइट. ये आपका यहाँ से आपका ये मोक जो भी आपका मक है मक ट्रांसफर होता रहेगा. कन्वेयर मक ट्रांसफर कन्वेयर. तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका एयर कंप्रेसिंग निडल जो भी है दैट इज एक्टिंग विद द प्रेशर 1 kg per centimeter square. But if this pressure increase or decrease, that is the effect on the working time of the tunnel. So if the इससे 1 kg per centimeter square से प्रेशर हमारा ज्यादा रहा तो हमारा जो भी है जो भी कंस्ट्रक्शन टाइम है वर्किंग आवर है दैट विल बी रिड्यूस. राइट. कम रहा तो दैट विल बी डिक्रीज वर्किंग आवर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल. राइट. सो here we see the some application of air pressure to the tunneling is not as so simple due to the following reasons. देखिए स्टूडेंट्स एयर कंप्रेसर एयर प्रेशर का यूज कर रहे हैं. सो दैट इज द बेस ऑन द प्रेशर. बट इफ वी सी द अर्थ pressure is vary with the depth. So that is the difficult case for our constructions of tunnels. So the earth pressure vary from the top of the tunnels to the bottom of tunnels. Right. So here the tunneling is not so simple. As the pressure in the floor of tunnels depend upon the nature of the strata, it is difficult to ascertain it theoretically. Right. The value of pressure varies with the moisture content in different strata, which is difficult to estimate. Moisture content भी vary करेगा तो उससे क्या होगा हमारा pressure vary करेगा. So that is not simple in this case. And if the compressed air will escape through the pores of soil, then air pressure will be diminished continuously. क्या होता है जब एयर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा आपका उसमें क्या होगा आपका उसमें जो एयर प्रेशर तो आपका जो सोयल फोर्स है तो उससे क्या होगा एयर एयर रिलीफ होगी और उससे प्रेशर रिड्यूस होगा. तो आपका ये भी हमें प्रॉब्लम फेसिंग होती है. तो ये आपका यदि देखें तो इन केस ऑफ क्ले ग्राउंड में आपका अच्छा रहता है जो अगर क्ले सोयल है फॉर दैट टाइप ऑफ सोयल टनलिंग इज विल परफेक्ट. राइट. वहाँ पे आपका क्या होगा इतना जो प्रेशर है दैट विल बी नॉट वेरिएंट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. So that is the good in the clay grounds. स्टूडेंट्स एयर कंप्रेस एयर टनलिंग हमने दिल्ली मेट्रो में जो भी टनलिंग की है तो कंप्रेस एयर टनलिंग से की है. यू कैन सी हियर दैट इज द दिस इज द कंप्रेस एयर टनलिंग. राइट. तो स्टूडेंट्स ये हमारा हमने यहाँ पे डिफरेंट मेथड ऑफ टनलिंग देखे. तो आपने टू मेथड हमने यहाँ पे देखे रॉक टनलिंग के लिए और यहाँ पे हमने टू मेथड देखे सॉफ्ट ग्राउंड टनलिंग के लिए. तो स्टूडेंट्स इनके एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस स्लाइड. First we starting with the heading and benching. So in this method we are using two part of construction. First is heading and second is benching. Right. Heading and benching. Heading is above part and benching is below part. So heading is the advanced part, advanced step we taken for construction and benching is before मतलब एक step आपका पीछे रहता है. Right. तो ये हेडिंग और बेंचिंग में इसमें एक्सप्लोसिव कम मात्रा में यूज होता है. सो दैट इज द मोर इकोनॉमिकल टू द फेस मेथड. राइट.
ड्रिफ्ट मेथड में क्या करते हैं, खोल कर देते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं और लॉन्गर टनल, स्मॉल टनल, मतलब एक तरह से स्मॉल टनल बना देते हैं, दैट इज साइज 3 मीटर टू 3 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम जैसे बनाने के बाद उसके बाद फुल कंस्ट्रक्शन करेंगे उस रोड का, जितना हमें साइज चाहिए, राइट। ये ड्रिफ्ट मेथड है। यू कैन से डिफरेंट ड्रिफ्ट मेथड, लोकेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, नंबर ऑफ ड्रिफ्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ टनल, राइट। ड्राइविंग टनल्स इन सॉफ्ट ग्राउंड, तो हमें सॉफ्ट ग्राउंड में टनल्स यूज करना है, तो हमें यहाँ पे कोई ना तो एक्सप्लोसिव चाहिए, ना कोई आपका वैसे जो भी एक्सप्लोसिव नहीं चाहिएगा, और आपका हैंड टूल्स के थ्रू हम ये एक्सप्रेशन कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे सपोर्टिंग भी चाहिए आपको, जैसे जैसे हम टनलिंग करते जाएंगे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते जाएंगे, राइट। मेथड ऑफ टनलिंग, जैसे सॉफ्ट ग्राउंड में मेथड करना है तो दैट इज द निडल बीम मेथड और कंप्रेसिव टनलिंग मेथड। तो निडल बीम मेथड है आपका, निडल बीम मेथड आपका सही मेथड है, अच्छा है, यूजफुल मेथड है सॉफ्ट ग्राउंड के लिए, राइट। इसमें आपको उस ग्राउंड के लिए सही है जहाँ पे हम कुछ मिनट्स के लिए अनसपोर्टिंग पार्ट छोड़ सकते हैं रन्स का, राइट। यू कैन सी हियर टनलिंग का क्या है प्रोसीजर आपका, क्या करोगे, पहले आपने ड्रिफ्ट किया, इसमें फिर आपने ये असेंबली पुट की, यहाँ पे लेगिंग प्रोवाइड की, लेगिंग इज सपोर्टेड विद जैक एंड दिस इज द निडल बीम। निडल बीम का जो फ्रंट फेस है दैट इज रेस्ट ऑन द drift and the rear faces stand with the stud post, right। तो जैसे पहले ड्रिफ्ट किया उसके बाद हमने फुल एक्सप्रेशन किया, एक्सप्रेशन करने के बाद जितना भी विड्थ का चाहिए, जितना भी डायग का चाहिए या आपको विड्थ का चाहिए, उतना एक्सप्रेशन करने के बाद लाइनिंग प्रोवाइड कर दिया हमने, राइट। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कंप्रेस एयर टनलिंग, दैट इज द ये आपकी जो टनलिंग होगी विद द एयर प्रेशर, एयर फोर्स, दैट इज द 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर से काम करेगा, राइट। एयर प्रेशर आपका डिक्रीज और इंक्रीज होगा तो आपका टाइमली जो वर्किंग आवर्स दैट विल बी इफेक्टिव। तो here we see the few tunneling not simple in some cases, right, the earth pressure vary from the top to bottom, so that is the difficulty case, or also the moisture, due to the moisture content the pressure will differ of the needles, right। and और यदि हमारी जो soil porous है so here will be relieve the air pressure, ठीक है। तो it is not simple type of soil, in the case of clay that is the good, right, in that clay type of ground that is a good। तो स्टूडेंट्स ये हमने स्टेप्स देखे, आपने सारे डिफरेंट मेथड देखे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स, रोप्स एंड सॉफ्ट ग्राउंड। हमने जो रोप्स के जो सीक्वेंस और ऑपरेशन था, रोप्स में टनलिंग करने के लिए, वो हमने लेक्चर नंबर 13 में देखे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर, थैंक यू।